Good morning, everyone. This is Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B2. Our subject is English grammar, and in today's video, I will explain you worksheet 11. So, before starting the work, like always, you all have to mention today's date in your copies. That is 9 December 2020. With this, you have to mention online classwork in your copies, and with this, you have to mention lesson 27 in your copies, and you have to mention topic also, which is words a mixed bag. So, as you all have seen that yesterday we have completed our lesson 21, which was conditional sentences, and from today we are starting a new lesson, that is lesson 27, words a mixed bag. So in this chapter I have already explained you that it is about synonyms, antonyms, prefix and homophones. I have given a YouTube link in your group through which you can understand the whole explanation of the lesson. Now let's come back to the work of today's worksheet. In today's worksheet I will explain you first of all definitions. So the first definition is of synonyms. A synonym is a word which has a similar meaning of a particular word in the language. So synonym जो होता है वो एक ऐसा word होता है जो समान अर्थ रखता है एक शब्द का किसी भी भाषा में. मीन्स जो समानार्थी शब्द होते हैं दे आर कॉल्ड सिनोनिम्स. लाइक इन एग्जाम्पल यू कैन सी हैप्पीनेस, जॉय, डिलाइट, एक्सटेसी, स्ट्रेंथ, करेज, पावर, फर्मनेस. So happiness means खुशी से so the meaning of these three words is happiness only, means खुशी ही है इसका meaning. Strength means होता है ताकत, so courage, power and firmness they also mean power, strength only, ताकत only. Next is antonyms. An antonym is a word which has an opposite meaning of a particular word in the language. So antonym जो होता है वो विपरीत अर्थ वाला होता है. मीन्स विलोम शब्द जो होते हैं उनको एंटोनिम्स कहा जाता है. किसी भी भाषा में अगर एक शब्द दूसरे शब्द का बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है, देन इट इज कॉल्ड एंटोनिम. एग्जाम्पल यू कैन सी पोलाइट मीन्स होता है विनर्म, इम्पोलाइट मीन्स नहीं जो विनर्म ना हो. नर्वस घबराया हुआ, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी. Next definition is of prefix. Prefixes are letters that are added before another words to form new words. Prefixes ऐसे letters होते हैं जिनको किसी भी शब्द से पहले जब आप लगाएंगे तब आप एक नया शब्द जो है वो बना सकते हैं. Example you can see, अगर आप disobey में obey word है and you are using dis, so it will make disobey. मैनेज्ड में आप मिस लगा देते हैं, मिसमैनेज्ड. वन थिंग ऑल्सो यू कैन मेक द प्रिफिक्सेज ऑफ सम यू कैन मेक एंटोनिम्स ऑफ सम वर्ड्स ऑल्सो बाय यूजिंग द प्रिफिक्सेज ओनली. नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ होमोफोन्स. होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स. होमोफोन्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण तो सेम होता है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही डिफरेंट होता है. एग्जाम्पल यू कैन सी बर्थ एंड बर्थ. But the first one birth is seat and second birth means to bear, जन्म देना. Second allowed and allowed. First allowed is permitted to do something, किसी कुछ करने की आज्ञा मिलना, and allowed not silently means तेजी से. So यहाँ पर spelling is different but pronunciation is same. Meaning is also different. Next is exercise E. Form sentences with each set of homophones to show the difference in their meanings. आपको इन homophones के साथ sentences बनाने हैं ताकि आप इनके बीच का अंतर बता पाएं. So B and B. He will be going to school tomorrow. वो कल स्कूल जा रहा होगा. So यहाँ पर B क्या है आपका एक प्रकार का auxiliary verb है. Second B, the honey bee is collecting the honey from the flowers. So जो शहद की मक्खी है वो फूलों से शहद इकट्ठा कर रही है. So here B means होता है आपकी honey bee. नेक्स्ट इज नाइट एंड नाइट. फर्स्ट नाइट मीन्स होता है शूरवीर. द नाइट्स ट्यूनिक वॉज bedabled विद ब्लड. ट्यूनिक मीन्स होता है अंग रखा. सो जो शूरवीर था उसका जो अंग रखा था वो खून के धब्बों से भरा हुआ था. देन सेकेंड नाइट इज रात. आई एम अफ्रेड ऑफ वॉकिंग अलोन ऑन स्ट्रीट्स एट नाइट. रात में मैं सड़क पर अकेले चलने से डरता हूँ. नेक्स्ट इज आइडल एंड आइडल. सो फर्स्ट इज नेवर कीप योर माइंड आइडल. आइडल मीन्स होता है खाली रखना. कभी भी अपने मस्तिष्क को खाली ना रखें बिकॉज इट इज सेड दैट एन एम्प्टी माइंड इज द हाउस ऑफ डेविल. सेकेंड आइडल विच मीन्स मूर्ति. आइडल वर्शिप बिगिन ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम. सो जो मूर्ति पूजा है वो एंशियंट यानी पुराने समय में स्टार्ट हुई थी. नेक्स्ट इज ड्यू एंड ड्यू. फोर्थ वन. फर्स्ट ड्यू मीन्स होता है ओस. अर्ली मॉर्निंग ड्यू ऑन द लीव्स इज अ ब्यूटीफुल साइट. सो जो सुबह सुबह पत्तियों के ऊपर ओस होती है वो एक बहुत अच्छा दृश्य होता है. नेक्स्ट ड्यू इस मीन्स कुछ आपके ऊपर चढ़ा हुआ होता है. हिज फीस फॉर द वायलिन लेसन्स आर ड्यू मीन्स उसकी जो फीस है वायलिन लेसन्स की वो अभी ड्यू है. फिफ्थ वन इज सीन.
द सन राइजिंग ओवर द स्नोई माउंटेन्स क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल सीन। सो जो स्नोई माउंटेन्स थे, बर्फ से ढके हुए पर्वत, उसके ऊपर जो सूरज निकल रहा था वो एक बहुत ब्यूटीफुल सीन क्रिएट कर रहा था। नेक्स्ट सीन मीन्स होता है देखना। हैव यू सीन हिज लेटेस्ट फिल्म? क्या तुमने उसकी लेटेस्ट फिल्म देखी है? 6 इज डियर एंड डियर। फर्स्ट डियर मीन्स होता है प्रिय, शी इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। सेकेंड डियर होता है आपका, इट मीन्स हिरन। द स्पेशीज ऑफ डियर इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। सो जो प्रजातियां हैं हिरनों की वो लगभग खत्म हो चुकी हैं। 6 इज यू एंड यू। द यू गेव बर्थ इन द स्टेबल लास्ट नाइट। जो यू है उसने स्टेबल में लास्ट जो नाइट है वहाँ पर बर्थ दी। यू, वाई डोंट यू मेक डिनर टू नाइट? इट मीन्स प्रोनाउन, तुम आज रात का डिनर क्यों नहीं बनाते हो? नेक्स्ट इज लूज एंड लूज। प्ले एज इफ यू हैव नथिंग टू लूज। ऐसे खेलो कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी ना हो, दैट इज लूज मीन्स खोना। सेकेंड लूज, ही हैज लॉस्ट सो मच वेट दैट हिज जीन्स आर नाउ टू लूज फॉर हिम। इट मीन्स ढीला, उसने इतना ज़्यादा वजन अपना कम कर लिया है कि अब उसकी जीन्स जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ढीली हो गई हैं। So these were the definitions and exercise related to lesson 27. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.